Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter development, and under this chapter we have discussed about the idea of development, that development in narrower sense of the term, and we have also discussed the broader sense of the term. And then we were discussing what was the challenge of development, especially for the countries of Asia and Africa, which became independent after the Second World War. And in these countries, what we find that Western model of development was adopted, and it was a top-down approach where decisions are taken at the top level without taking into consideration the interest of the people at the bottom level. And it was considered that by achieving higher economic growth rate, what will happen that the benefit of economic growth will trickle down to the poor section of the society. So that model was adopted, but what we find that there are some very important and vital criticisms are there against this idea of development, or we can say against this Western model of development, जिसमें कि हमने देखा कि the first cost which the people are bearing is the social cost of development. And in this social cost of development, we have seen that there are many such developmental projects are taken place, which are actually causing a problem to a particular section of the society, and that problem is in the form of displacement of the population. Because of these developmental projects, a group is getting displaced, and this displacement is causing not only economic problem for them but also cultural and social problems. They become a part of that poor section in the अर्बन एरियाज, जहाँ पर वो डिस्प्लेस होके पहुँचते हैं वहाँ पर वो मेन स्ट्रीम में कभी भी नहीं जा पाते हैं. दे आर एट द मार्जिनल, they are marginalized, and they become one among the poorer section of the urban areas. तो ये problems सबसे बड़ा जो social cost है वो है. उसके अलावे इसके environmental cost भी है, जिसमें हमने देखा था कि because of developmental projects the environment is getting degraded. बहुत ज़्यादा degradation हो रहा है environment का, और जो जिन प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं जो आज तक नेचुरल कैलेमिटीज़ मानी जाती थी, लाइक सुनामी है, फ्लड है, जो कि नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, बट एक्चुअली व्हाट वी फाइंड दैट man-made factors are responsible for these natural calamities. These are not purely natural in nature, because जो activities human being की है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि this increased activity of human being is causing this natural calamities. Like tsunami जो आया, उसके लिए ये कहा जाता है कि उसके पीछे that may be a reason कि जो मैनग्रोव का डिस्ट्रक्शन हुआ और सी कोस्ट पे जो इतना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है सुनामी के आने का. इसी तरह से हमने ये भी देखा था 2015 में जो उत्तराखंड में जो बारिश हुई, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, वो दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिकॉज इतना ज़्यादा इन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन के काम हुए, ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा नेचर के साथ हुआ, जिसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई. तो ये एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है वो इंसान को चुकाना पड़ रहा है. और इसमें हम देखेंगे कि ये जो एनवायरमेंटल कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री और रीजन ऑफ द वर्ल्ड. Actually, we all are going to be affected badly because of this degradation of environment.
So, because of degradation of environment, the human life is under threat, and we can say that because of and what is the reason of degradation of this environment? The reason is human being itself. And one more thing, just global warming, that is a very great problem, a very big problem of today's time. And we know that because of global warming, what is happening, that the ice is getting melted, है ना, आर्कटिक पे, अंटार्कटिका पे आइस जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं. आइस के मेल्ट होने से क्या हो रहा है कि सी लेवल बढ़ता जा रहा है. तो इट इज़ इस बात का बहुत ज़्यादा, इट इज़ हाईली पॉसिबल दैट in the coming years, like within 50 years, there will not be this Maldives and Bangladesh, वो सब सबमर्ज कर जाएंगे. मुंबई के बारे में भी कहा जाता है सबमर्ज हो जाएगा. तो ये चीज़ें हो रही हैं, और इसके रीज़न में हमारा डेवलपमेंट मॉडल ही है. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एनर्जी रिसोर्सेज का जिस तरह से यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ला रही हैं, और हमारा लाइफ से बुरी तरह अफेक्टेड हो रहा है ना. अब हम लोग ये दो ही मेन हमें क्रिटिसिज्म देखना था, एनवायरमेंटल एंड सोशल. एंड नाउ वी विल सी, नाउ वी विल असेस द डेवलपमेंट. जो भी डेवलपमेंट हुआ है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एशिया और अफ्रीका के उन कंट्रीज़ में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिनको इंडिपेंडेंस मिला, उसका हम लोग असेसमेंट करेंगे. असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट. अब ये असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे. असेसमेंट का मतलब है कि असेस करना, उसकी देखना कि उसने क्या किया है, कितना अचीवमेंट है उसका. तो अगर हम अचीवमेंट और फेल्यूर दोनों ही चीज़ों को देखते हैं असेसमेंट में, तो हम उसके अचीवमेंट को देखें तो अचीवमेंट है. ऐसा वी कांट से कि दिस बाय अडॉप्टिंग दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वी हैव अचीव्ड नथिंग. इट्स नॉट लाइक दैट. We have achieved. What we have achieved is higher economic growth rate. ठीक है, हमें अचीव करना है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. हमने किया है बिकॉज दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपना करके हमारे इंडिया में भी, हमने, हमारी कंट्री में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है हमारा वो अच्छा चल रहा है. एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ओनली. लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हाई तो हो गई है ना, बट इसके हाई होने के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉल्व होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया. लाइक पॉवर्टी इज स्टिल अ प्रॉब्लम. आज भी हमारी कंट्री के पुअर पीपल, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल जो है वो मोर देन 20% आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं. एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ, है ना. तो आज भी हमारे यहाँ पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, आज भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, आज भी हमारे यहाँ माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है. आज भी हमारे यहाँ स्टार्वेशन हो रहा है. ये दिल्ली का एग्जाम्पल है. 2 साल पहले की बात होगी, जबकि स्टार्वेशन से बच्चे, एक फैमिली के बच्चों का डेथ हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ हंगर. अगर दिल्ली में, जो देश की कैपिटल, अगर वहाँ पे स्टार्वेशन से डेथ हो रहे हैं, हंगर से डेथ हो रहा है, तो इससे बड़ी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है. वी डोंट नीड एनी वर्ड टू से. तो ये कंडीशन प्रिवेल कर रहा है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमने अचीव कर लिया, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स जहाँ थे वो वही हैं. एंड इट इज़ नॉट द कंडीशन ऑफ ओनली वन कंट्री, इट इज़ नॉट द कंडीशन ऑफ ओनली इंडिया.
बट ऑलमोस्ट इन ऑल द कंट्रीज, जो भी इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें ज़्यादातर कंट्रीज़ में अफ्रीका और एशिया में ये प्रॉब्लम्स आज भी परसिस्ट कर रही है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो हमने डेवलपमेंट के मॉडल को अपनाया उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो ग्रोथ रेट तो हमारा हाई हो गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली बाकी जो चीज़ें बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई। तो जो सोचा गया था, जैसा कि हम लोगों ने देखा, इट वाज द होप दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो ट्रिकल करता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। 70 ईयर्स हो गए, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी अचीव कर लिया, लेकिन वो जो ग्रोथ के कारण जो बेनिफिट आ रहा है, दैट बेनिफिट इज नॉट गेटिंग ट्रिकल्ड डाउन। बर्डन उठा रहे हैं हमारे देश के सभी लोग, खास करके जो हमारा पुअर सेक्शन है वो बर्डन उठा रहा है, बट बेनिफिट नहीं मिल पा रही है। तो बेनिफिट जो है वो कहाँ जा रहा है? ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारा हाई हो गया बहुत ज़्यादा, तो बेनिफिट तो हो रहा है, बट ये बेनिफिट जा कहाँ रहा है? एक्चुअली बेनिफिट जो है वो एक बहुत ही छोटा सा जो ग्रुप है कंट्री का, उसके पास जा रहा है, उस ग्रुप के पास, और ये वो ग्रुप है जो कि ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है। What is this? This is the widening of the gap between the rich and the poor. तो जो बेनिफिट पुअर को सोचा गया था कि ट्रिकल डाउन हो जाएगा, एक्चुअली इट हैज नॉट ट्रिकल्ड डाउन, एक्चुअली इट हैज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सम प्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ द कंट्री, जिसके कारण हमारा जो गैप है रिच और पुअर के बीच का वो वाइड होता जा रहा है। तो अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या कंक्लूजन हो रहा है? हमारा यही कंक्लूजन हो रहा है कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का मॉडल अडॉप्ट किया गया, प्लस जो डेवलपमेंट का नोशन था, दैट नोशन वाज आल्सो नॉट करेक्ट। जो डेवलपमेंट के लिए हमारी सोच थी, हमारी विचार थी, दैट वाज आल्सो नॉट करेक्ट ना, कि हमने तो ये सोच लिया कि डेवलपमेंट, बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गई तो हो गया हमारा काम, बट एक्चुअली this is not the case. As we started, as I told you in the starting of the chapter, है ना, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक चीज होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक चीज होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको डेवलप करना, and that can be developed only by developing the education sector and the health sector. तो इसका इकोनॉमी से रिलेशन ऐसा नहीं है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया तो अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बावजूद ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी इंप्रूव करेगी तो दैट इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विल नेचुरली लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें किस चीज़ को देना चाहिए था? ह्यूमन डेवलपमेंट को, जो कि हमने नहीं दिया। दिस इज द वीक पॉइंट, दिस इज द वीक पॉइंट ऑफ आवर डेवलपमेंट मॉडल। हमने जिस डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट किया उसमें हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर so many problems we are facing in today's time, like जो भी हम poverty, unemployment और malnourishment की बात कर रहे हैं। So what we need to change the approach, instead of focusing on economic development, we need to focus on human development, and instead of measuring the economic growth rate in order to see that a country has achieved the goal of economic development or not, what is important that to measure the human development, human development को measure करिए। इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे, how we will
मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे पता चलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में? अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पता चलाने के लिए एक बहुत अच्छा हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो काम करती है इस डायरेक्शन में। वो हर साल एवरी ईयर एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश करती है, और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंट्रीज़ को पोजीशन दिए जाते हैं, रैंक दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो है UNDP, ये उसके जो रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे हम अच्छे से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कंट्री में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। सो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज UNDP, United Nations डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये UNDP जो है वो HDI निकालती है, और HDR, ये HDI क्या है, ये HDR क्या है? HDI क्या हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, एंड ये HDR क्या हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो UNDP जो है वो कंट्रीज़ के बहुत सारे क्राइटेरिया को देखती है। इसमें जो मेन क्राइटेरिया होता है, उनका 3 क्राइटेरिया होता है। एक होता है एजुकेशन का, ठीक है, दूसरा होता है हेल्थ का, और तीसरा होता है इनकम, एनुअल इनकम, नॉट एनुअल, इट्स पर कैपिटा। इन तीनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है UNDP की तरफ से, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे वो इंडेक्स बनाती है। ठीक है, तो इसमें ये समझना, अब एजुकेशन को कैसे मेज़र करेंगे? एजुकेशन को मेज़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक नेट अटेंडेंस रेशियो है, लिटरेसी रेट है, मेल और फीमेल के बीच के लिटरेसी रेट का फ़र्क है। तो इस बेसिस पे एजुकेशन के बारे में जो भी डेटा किसी भी कंट्री में सेंसस होता है, वहाँ सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, तो उन डेटा को वो यूज़ करती है देखने के लिए। इसी तरह से हेल्थ में जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जिससे कि पता चलता है कि हेल्थ की क्या स्टेटस है। फिर जैसे मैटरनल मोर्टालिटी रेट होती है, एवरेज एज जिसको हम कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है। इन सब बेसिस पे वो अपना एक इंडेक्स बनाती है, और इस इंडेक्स में वो कंट्रीज़ को नंबर देती है, रैंक देती है, रैंक 1 पे कौन है, रैंक 2 पे कौन है, रैंक 3 पे कौन है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अब इम्पॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं लगाया जा सकता है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को देखना है हमें, और ह्यूमन डेवलपमेंट में ये 3 जो है, दीज आर द 3 मेन क्राइटेरिया। तो एक इनकम इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, है ना। एंड मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि अ कंट्री may belong to higher per capita income, but the status of education and health is very bad. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो बता रहा है कि हमारे कंट्री में
क्या कंडीशन प्रिवेल करती है, इससे हमें काफ़ी अच्छे से चीज़ों का पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने देख लिया कि जो कुछ भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट का मॉडल को अडॉप्ट किया गया, उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे उन सबको हमने डिस्कस किया और ये देखा कि हमारा अप्रोच ही गलत था, है ना। हमने अप्रोच किया, हमने फोकस किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जबकि हमें फोकस करना था ह्यूमन डेवलपमेंट पे। तो हमारा अप्रोच में ही प्रॉब्लम था। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमें जिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को हमने अडॉप्ट कर रखा है, उस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को बदलने की जरूरत है। तो व्हाट वी नीड एन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, alternative conception of development। मतलब अगर हमें वेस्टर्न मॉडल को नहीं अडॉप्ट करना है तो फिर कुछ अल्टरनेट तो चाहिए ना कोई मॉडल तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो क्या होना चाहिए, ये अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग कि जो प्रेजेंट मॉडल हमने अडॉप्ट किया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट हमें उसके लिए पे करना पड़ रहा है, और कैसे ये सोचा गया था कि जो बेनिफिट होगा वो ट्रिकल डाउन करेगा, बट दैट बेनिफिट हैज़ नॉट ट्रिकल्ड डाउन। तो अब क्या है कि नाउ वी नीड टू फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज जो हम देखेंगे ये हमारा अप्रोच है। दिस इज आवर अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या हुआ, हमारी जो सोचने का जो डायरेक्शन होता है, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो डेवलपमेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट। और दूसरी चीज स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए डेवलपमेंट को लाने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेवलपमेंट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। तो जो स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं वो क्या है, वो है बॉटम अप। और इसी बॉटम अप स्ट्रेटजी का जस्ट अपोजिट जो है वो क्या है, वो है टॉप डाउन, जिसको हम डिस्कस किया है ना। इस टॉप डाउन स्ट्रेटजी को हमने डिस्कस किया है। क्या है ये टॉप डाउन स्ट्रेटजी? टॉप डाउन स्ट्रेटजी का ये मतलब हो रहा है कि डिसीजंस फॉर डेवलपमेंट इज टेकन एट द टॉप लेवल, ठीक है। टॉप लेवल पे जो लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, दे आर टेकिंग डिसीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग देम एट द बॉटम लेवल। डिसीजन ऊपर हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, अफेक्टेड ग्राउंड लेवल पे पीपल हो रहे हैं, है ना। इसी को हम कहते हैं टॉप डाउन स्ट्रेटेजी। हमने इसी टॉप डाउन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया। हमारा प्लानिंग कमीशन जिस तरह से काम करता है था, अब तो प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, तो प्लानिंग कमीशन जो है वो इसी टॉप डाउन स्ट्रेटेजी पे काम करता था। इस टॉप डाउन स्ट्रेटेजी के में क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें डिसीजंस जो होते हैं वो लोकल पीपल के इंटरेस्ट को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके लिया जाता है। The interest of the local people, the demands of the local people, the need of the local people are not taken into consideration when decisions are being taken by the national leadership. तो इससे क्या होता है कि आपने कुछ भी डिसीजन अपने हिसाब से ले लिया, उसके कारण बहुत ज़्यादा सफरिंग हो जाती है ग्राउंड लेवल पे लोगों की, जिसको हम कहते हैं बर्डन। जो ग्राउंड लेवल पे पीपल हैं, दे आर बर्डेंड विथ दिस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है, लाइवलीहुड छिन जाती है, लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ खत्म हो जाती है।
ये क्या है? दिस इज द बर्डन ऑफ डेवलपमेंट। और बेनिफिट किसको हो रहा है? जो जिसको हम कह सकते हैं मुट्ठी भर लोग, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने टॉप डाउन स्ट्रेटेजी को अपनाया है। इसका उल्टा जो है बॉटम अप स्ट्रेटेजी। अगर हम बॉटम अप स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो क्या होगा? कैसे डिसीजंस लिया जाएगा रिगार्डिंग एनी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन लेना, कैसे डिसीजन लिया जाएगा? जब भी बॉटम अप स्ट्रेटेजी की बात होगी तो इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, दैट लोकल गवर्नमेंट विल बी इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग डिसीजंस। लोकल गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बिना डिसीजन नहीं हो पाएगा। National leadership is very powerful, very important, but what is more important is local level पे क्या need है, जो कि जो local government है, जो local bodies हैं, they will be more able and efficient to understand the need of the local people। तो इनको involve करने की ज़रूरत है। जब हम bottom up approach कहते हैं तो उसमें local government को involve करने की need होती है। और जब लोकल गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो डिसीजन में जो लोकल पीपल हैं वो आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा और इस कारण से एक ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा बर्डन उन पर न पड़े, है ना। तो अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे तो हमने टॉप डाउन स्ट्रेटजी को ही अडॉप्ट किया, बट केरल एक ऐसा एग्जाम्पल है, केरला, जहां पर कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब यही है कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस डेवलपमेंट, दैट इज नॉट टेकन एट द सेंट्रल लेवल, but the local government is very much involved in taking the decisions। तो इससे क्या होता है कि इससे जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें लोकल पीपल के इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लोकल पीपल का सपोर्ट मिलेगा, आंदोलन नहीं होंगे। जैसे सरदार सरोवर डैम जब बन रहा था, बनने के प्रोसेस में था, इतना लंबा चौड़ा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। क्यों? क्योंकि लोकल पीपल के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, लोकल पीपल का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा था। वो लोकल पीपल को सपोर्ट करने के लिए, लोकल पीपल जो थे उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को। तो इससे क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अरोज करता है। तो उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बचने के लिए लोगों का कोऑपरेशन हमें मिले, हम साथ मिलकर बढ़ें, ये जरूरी है। और इसके लिए ही हमको इस बॉटम अप स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना होगा, जो कि अगर अभी हम देखें हमारे यहाँ वो ख़त्म हो गया, प्लानिंग कमीशन इज़ नो मोर देयर। अब हमारे यहाँ क्या है, अब हमारे यहाँ नीति आयोग आ गई है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो नीति आयोग है ना, इसमें ये कहा गया है कि इट विल वर्क ऑन दिस स्ट्रेटेजी, बॉटम अप स्ट्रेटेजी। और एक और चीज़ इसमें है कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात की गई है कि स्टेट्स का भी से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टेट्स को कुछ भी अधिकार ना हो। तो ये चेंजेस आ रही हैं, होपफुली हम अपनी कंट्री में भी इस तरह के चेंजेस को देखें जहाँ पर कि लोकल, पूरे कंट्री के लेवल पे कि लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हुए डिसीजंस लिए जाएं। तो यहाँ पर जो जिस अल्टरनेटिव मॉडल की बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज this alternative conception of development should be sustainable and equitable. So what is the meaning of sustainable and what is the meaning of equitable? Sustainable is ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, ऐसा नहीं कि बस अभी हमें डेवलपमेंट हो गया बस काम खत्म, आगे की जो जनरेशन आएंगी वो अपना समझें, उनको जो प्रॉब्लम्स आएंगी दे विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। दैट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा करिए जिससे कि हमारा आज का जो जनरेशन, अभी जो हम प्रेजेंट है,
प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स तो फुलफिल हो, साथ ही साथ जो हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स हैं उनके भी नीड्स को हम ध्यान में रखें कि उनका भी तो बहुत सारे नीड्स होंगे, कैसे वो फुलफिल करेंगे। अगर हम ही सब कुछ खावा के ख़त्म कर देंगे, एवरी रिसोर्सेज विल बी यूज्ड बाय दिस जनरेशन ओनली, देन व्हाट विल बी व्हाट आर वी गोइंग टू लेफ्ट फॉर दिस फ्यूचर जनरेशन, है ना। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने कई बार शायद क्लास में इसको रिपीट किया है, और ये जितनी बार कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये चीज़ें सुनने से ज़्यादा इसको आत्मसात करना पड़ता है। इन चीज़ों को आप अपने साथ हर समय लेकर चलिएगा, तभी आपके बिहेवियर में उस तरह के चेंजेस आएंगे कि जो स्टेटमेंट हम बता रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं ना, दीज रिसोर्सेज आर नॉट समथिंग विच वी गेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, okay, these resources actually are something which we get from our future generation as loan. हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो हमें हमारे पूर्वजों ने विरासत में नहीं दी है, बल्कि वो रिसोर्सेज हम अपने फ्यूचर जनरेशन से हमने उधार में लिया है। और जब किसी चीज़ को किसी से हम कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो व्हाट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी? आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव बैक द लोन, जो भी सामान हमने लोन लिया उसको उसी तरह से वापस करें। जैसे किसी से आपने बुक उधार लिया और उसको जब आपने वापस किया तो बिल्कुल फटी हुई कंडीशन में वापस किया, तो क्या हुआ? दिस इज वेरी बैड। तो ये नहीं करना है। हमने जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उनको हमने अपने फ्यूचर जनरेशन से लोन में लिया है, और उनको हमें यही कोशिश करनी है कि उसी फॉर्म में हम उनको वापस करें। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इक्विटेबल मीन्स कि बेनिफिट एंड बर्डन शुड बी सेम। ये नहीं हो कि एक ग्रुप है जिस पर सिर्फ और सिर्फ बर्डन ही पड़ा हुआ है और एक ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही ले रहा है, बल्कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए, ताकि सभी लोग, सबके क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हो। कि किसी एक ग्रुप की बात हम नहीं करनी चाहिए, किसी एक सेक्शन की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबका विकास, है ना, सबको साथ लेकर चलना है। दैट इज द मेन थिंग। So this is all for today, and we will discuss other issues in the next class.